अश्वती जी नमस्ते, वेलकम। आ गई अश्वती, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाउ आर यू? फाइन सर। Okay, good. So ready? You will be singing Yes, the sir, ready. Dhanvantari Vandana live. Okay. Na? Good. 6 more minutes. Six Yes. more minutes to 5. Yes. Six more minutes. Professor Sanjeev Sharma sir has already joined. Okay, sir. Other guests are yet to join, but I presume they will be joining soon. Okay. Sir, namaste. Sir, namaste. Good to see you, sir. Namaste. You are very meticulous, very punctual, sir. I salute you. Thank you. Badhiya, sir. This is part of my habit. Yes, I know, sir. I know. Therefore, I am underlining that. I was expecting you will be the first to join. Thank you. Yes, sir. Bilkul. Anup sir and Tanuja madam and Jayandev Pujari ji are expected to join soon. बट एक सुपरस्टार आ गए हमारे पास, तो हमारा आधा काम हो गया है. संजीव सर, थैंक्स फॉर योर आशीर्वाद सर. सर, valedictory session already rocks. I am not superstar. Superstars are yet to come. One of the superstars, sir. No. I am not superstar. Hello, Ashwati. How are you? Fine, good. Sir, namaste. Namaste. Hope you are also doing good. Ashwati ji, NIA is these days rocking. NIA has attained the status of deemed university very recently. Yes, sir. All are aware. Yes. So the architect of that vision is with us. So, Yes. Namaste, sir. Salute you, Namaste, Sanjeev sir. Namaste. Well, we have seen the change Yes. since sir has taken the chair. Yes. Absolutely. Yes. अनुराग जी नमस्ते. नमस्ते सर. सर, हमारे डायरेक्टर सर को भी नमस्ते और प्रणाम. Namaste. Sir, Anurag Pandey ji is in BHU. He is senior assistant professor there. Yeah. And alumni of NIA. NIA. Long back he was in NIA. Now Pakka BHU. Namaskar, sir. I also take the opportunity to salute you. Preeti Chhabra ji speaking, sir. Preeti. हाँ, प्रीति जी नमस्कार. नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते. नमस्कार. बहुत बढ़िया. आप सुनाइए. ठीक हैं? बहुत ठीक है सर. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. चलो, मैंने कहा आपसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो तो यहाँ प्रणाम करें. पिछली बार आइए, सिर्फ मिस हुआ था आपका. बिल्कुल. It was again a history and a story. Yes. चलिए, ठीक है सर. Good to meet you. Good to see you. जी. Hello. Anup sir has joined. Anup sir, welcome. Welcome to this platform. Namaskar, Pawan ji. Guest Namaskar. has joined. Thanks for your Ashirwad, sir, from your busy schedule. Sure, नमस्कार सर. Namaskar. I'll just call up Tanuja madam and Yeah.
बस तो रिमाइंडर्स करत होतो. नमस्कार. अनूप जी नमस्कार. अनूप सर. नमस्कार नमस्कार मुख्य अतिथि महोदय को नमस्कार. प्रभु. जतिन जी ये स्लाइड हटा दीजिए ना, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए. विल स्टार्ट इन 1 minute. We will start. Dev Pujari sir is joining within a few minutes, couple of minutes. Dev Pujari sir has joined. नमस्कार. नमस्कार Namaskar sir. नमस्कार. Dev Pujari sir has joined. Welcome sir to this valedictory session. So, sir, if all the elders give me the go ahead, let's begin the session. The time, respecting the time. Everybody has joined very promptly at dot 5 o'clock. I hope Tanuja madam is busy somewhere. She's not picking up the phone. पवन जी आपके साइड में क्यों कुछ हैजी आ रहा है स्क्रीन पे? ये वर्चुअल था तो मैं हटा देता हूँ. वर्चुअल स्क्रीन है, वर्चुअल स्क्रीन है, वो साइंस की थी, उसको हटा दिया मैंने. No, it's okay. अब हट गए. हाँ हटा दी. आपके बड़े लोगों का आदेश है तो हटा दी. हेलो हेलो सुन. पवन जी दिखने चाहिए ना चांद जैसे, ऐसे कैसे लगे? हाँ आ रही है ना, बुला लीजिए ना, हम रुकते 2 मिनट, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुके हम 2 मिनट, है ना? ओके बिल्कुल. हाँ लेडीज फर्स्ट. नहीं, Ranjana Agrawal ji is the chairperson of the organizing committee. She is organizing secretary. She is director NISCARE. Okay. She is joining. Oh, that's She will be giving the welcome address. So we'll wait for her in different. She is doing a lot of work. The 41 events are being done by NISCARE, CSIR, and all huge. The spectrum is great, sir. I'm just giving you the background. We can call it right from Amitabh Bachchan, A for Amitabh Bachchan, to Zeta Zones, Z for Zeta Zones. Catherine Zeta Zones is also there. International Film Festival is there, sir. 41 events, superb. International Science Film Festival. बहुत, and all the other events like toys and games and face to face with science, water management, waste management, and most of the things are. पवन जी ये जो अपना इवेंट है जिसका वैलिडिक्टरी है उसमें क्या क्या हुआ बताइए. सर हाँ बताते हैं सर, वो प्रोग्राम में बताऊंगा ना कि बैकग्राउंड भी बता दूं मैं. बैकग्राउंड बता दीजिए. कल 4 इवेंट्स हुए सर हमारे, और आज सवेरे से अभी तक 4. इसका स्वरूप ये था सर कि है साइंस का उत्सव, तो फेस्टिवल है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ऐसे सेमिनार और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं थे. जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ज्वाइन कर रहे हैं. जयंत राव. जयंत सर नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद के लिए. नमस्ते. कार्यक्रम का बैकग्राउंड ही बता रहा था, वेलनेस कॉन्क्लेव क्या है. रंजना मैडम ज्वाइन कर रही है. नमस्कार भाई साहब. नमस्ते नमस्ते. रंजना मैडम ज्वाइन कर रही है. औपचारिक शुरुआत हो उससे पहले मैं बैकग्राउंड बता रहा था सर जैन जी. तो वो पहले ये जैन जी का आदेश था एक तरह से कि इसमें उत्सव का स्वरूप हो. तो उत्सव में जैसा आमोद प्रमोद है और आमोदम हर्षेण हर्षम आमोदेन और गीत वादित्र आदि है, तो वी वांटेड टू गिव दिस अ फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, नॉट अ स्टेज सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और पैनल डिस्कशन और बड़े बड़े लेक्चर्स इस पे ने आधारित रहते हुए. तो बहुत सारे हमने कॉम्पिटिशन्स लिए और बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार, आर्ट इन साइंस एंड साइंस इन आर्ट, ऐसा भी एक आयाम दिया इसको.
तो अभी जो सेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ उसका था ही वो म्यूजिक थेरेपी पे, अर्पण भट्ट साहब का था। 1-1.5 घंटे का बहुत जबरदस्त सेशन रहा म्यूजिक थेरेपी पे। रागदारी उन्होंने गा के भी सुनाया कुछ लाइव। फिर सर कार्टून फेस्टिवल, कार्टून कंपटीशन रही, पोस्टर कंपटीशन हुआ, एक ऐसे कंपटीशन रही बच्चों में, बहुत पॉपुलर रही उसके। और शुरुआत हमने की थी सर कल किचन फार्मेसी से, किचन फार्मेसी की वीडियो ब्लॉगिंग की कंपटीशन, अपने वीडियोस दे। तो कल उसके रिजल्ट्स भी आ गए। वो प्रोफेसर मीता जी उसकी एंकर थी। उसके बाद सर कवि सम्मेलन भी किया हमने, वेलनेस के हैप्पीनेस में, हास्य व्यंग कवि सम्मेलन, CCRS के विनोद लवानिया जी उसके एंकर थे। फिर योगासन, योग एट योर डेस्कटॉप, डेस्क, कुर्सी पे बैठे बैठे योगासन कैसे करेंगे, और योग के कंपटीशन, इस थीम पे लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस भेजे। ये मैं फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन एक ओवरऑल थीम ये थी कि इसका साइंटिफिक सेमिनार वाला स्वरूप न रखते हुए साइंटिफिक उत्सव वाला स्वरूप रखा गया। जैन जी का आदेश ही था, एक तरह से सजेशन था, तो हमने उसको अमल करने की पूरी कोशिश की। बहुत आनंद आया सर इसमें, लेकिन मजा आया, एकदम अलग प्रकार का था ये उत्सव। पवन जी, ये पार्टिसिपेंट आयुर्वेद स्कॉलर्स ही थे या? नहीं सर, आयुर्वेद के डेफिनेशंस थी इसमें वेलनेस की। हेल्थ एंड वेलनेस कैसे आयुर्वेद के स्वास्थ्य में एक ही में आ जाता है। WHO ने इसको अलग अलग कर रखा है, हेल्थ एंड वेलनेस। क्लिनिक के भी नाम आजकल ऐसे ही है, हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक। नो दैट्स फाइन। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? पार्टिसिपेंट्स ऑल साइंस स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, वी आर ओपन टू एवरीबॉडी। और सरप्राइजिंगली नहीं, हमको खुशी भी है इस बात की कहीं ना कहीं कि आज का जो पोस्टर प्रेजेंटेशन था, कार्टून प्रेजेंटेशन, कार्टून कंपटीशन की विनर जो है वो बॉटनी की स्टूडेंट है। अनुराग जी, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। बॉटनी की स्टूडेंट है वो, गुरुग्राम के कॉलेज की। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उसने, वो प्राइज, फर्स्ट प्राइज ले गई आयुर्वेद के बच्चों के सामने, PG स्कॉलर्स के भी सामने। तो मैंने सब लोग थे, साइंस के स्टूडेंट्स थे। ग्रेट ग्रेट, जस्ट ग्रेट। सुमन मैडम, हेलो सुमन मैडम, रंजना मैडम से हुई कुछ अगर बात तो? सुमन मैडम मेरे साथ ऑफिस में ही है। हाँ सुमन मैडम, बोलिए मैडम। अच्छा ठीक है, उसमें और उसके बाद यहाँ ज्वाइन कर लेगी तुरंत। ये आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि वो, जैसे ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या CCIM का फंक्शन है, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, तो आप हर जगह डिमांड में। तो रंजना मैडम वुमेन्स में कंक्लूड करके बस अपने यहाँ ज्वाइन कर रही है। तो मैंने पूरे 41 इवेंट्स को संभाल रही है। 2 मिनट और रुकते हैं सर, और अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर शुरू कर देते हैं हम। उनका स्वागत भाषण है।
हाँ सुमन मैडम बोलिए। वो सर रंजना मैडम व्यस्त हो, बाद में खत्म होते ही सेशन ज्वाइन कर लेगी, तो हम शुरू करते हैं सर आप लोगों के समय का रेस्पेक्ट करते हुए, है ना। सो आई फॉर्मली वेलकम ऑल द लीजेंड्स ऑफ आयुर्वेद टू दिस वैलिडिटरी सेशन ऑफ। मोहन जी वो देव पुजारी जी और फोन पे है। ठीक है, हो गया। रख दिया। आई फॉर्मली, तनुजा मैडम का फोन है। तनुजा मैडम नमस्ते। हाँ मैडम नमस्ते, वो वैलिडिटी सेशन में ज्वाइन कर रहे थे ना मैडम आप? अनूप जी नमस्ते। वेलनेस कॉन्क्लेव के वैलिडिटी सेशन में 5 नमस्ते। मिनट के लिए। हाँ आ जाइए नमस्ते। मैडम, 5-10 मिनट में। हाँ आ जाइए, आ जाइए, चलेगा चलेगा चलेगा। अनूप जी नमस्ते। नमस्ते मैं सर। बताता हूँ ना आपको, आप ज्वाइन कीजिए। कर्णावती के बाद आइए, आइए। हुआ। हाँ हो जी जाएगा। सर, बाद में मिलना नहीं हुआ, पर ऐसे ही दर्शन हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोरोना ने नई विदा दे दी सर। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। आना जी जामनगर इस बार आना है। जी सर, बड़ी खुशी होगी, आप पधारें कभी भी सर। जरूर जरूर एक बार आएंगे। जी 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 आप स्वस्थ है ना? जी सर, एकदम वाह। सर। जी सर। वैद्यों को ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं सर, फिर भी वैद्यों का भी कभी कभी अगर नहीं किया, प्रज्ञापराध किया, तो वैद्य वैद्य भी फंस सकता है कभी। जी सर। सर आप सभी लीजेंड्स का इस वेलनेस कॉन्क्लेव के वैलिडिटरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम करता हूं मैं आप सब लोगों को, और इस कार्यक्रम की फॉर्मल शुरुआत के लिए अनुमति चाहता हूं। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम धन्वंतरी वंदना के साथ शुरू करेंगे। मैं आग्रह करता हूं, विनंती करता हूं वैद्य अश्वत्थी कुट्टी जी से कि वो धन्वंतरी वंदना का प्रारंभ करें। धन्वंतरी स्तवन। शङ्खं चक्रं जलौका दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीला। थैंक यू अश्वत्थी जी। सर हमने धन्वंतरी वंदना लगभग हमारे प्रत्येक सेशन में रही है, और कोशिश ये रही कि हर बार अलग अलग शैली में इसका स्तवन किया जाए। तो ये अभी कर्नाटिक स्टाइल में केरल से है अश्वत्थी कुट्टी जी, इन्होंने भी अपना एक परिचय दिया। तो धन्वंतरी जी के आशीर्वाद के बाद हम ये शुरू करते हैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आप सब लोगों का। बड़े बड़े हमारे साथ जो जुड़े हैं, आज के अध्यक्ष प्रोफेसर अनूप ठाकर जी हैं, वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। साथ में बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर है आयुर्वेद के, वैद्य जयंत देव पुजारी जी हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स CCIM, और प्रोफेसर संजीव शर्मा जी डायनामिक लीडर और वाइस चांसलर ही ऑलमोस्ट डायरेक्टर है अभी तो, लेकिन वाइस चांसलर का ऑर्डर बस चल पड़ा है। नई स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है डायरेक्टर संजीव शर्मा जी, और हम सब के मेंटर्स, हम सब के गाइड श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, राष्ट्रीय सचिव विभाग, जो
विज्ञान भारती, जो अपने इस क्षेत्र में स्वदेशी विज्ञान के प्रसार के लिए देश विदेश में अनेक वर्षों से काम कर रही है। ऐसी संस्था इसने ये साइंस फेस्टिवल का सपना देखा है, इतना बड़ा साइंस फेस्टिवल वर्चुअल तो वर्चुअली सही करके दिखाया है। तो उसके करता धरता, उसके बैकबोन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटा सा परिचय मैं फिर से दे दूं आपको वेलनेस कॉन्क्लेव के बारे में। एक पहले तो ये वेलनेस कॉन्क्लेव एक छोटा सा 41 कुल कार्यक्रम हो रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के अंतर्गत वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि मैंने बताया A to Z, जिसमें साइंस के सारे स्पेक्ट्रम को कवर किया गया है। साइंस फिल्म फेस्टिवल जैसी चीजें, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, मेन स्ट्रीम साइंस, IIT के लोग जुड़े हुए हैं। शेखर मांडे जी CSIR के अध्यक्ष, इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, चेयरमैन है। निस्केर की रंजना जी जो भी जुड़ रही है हमसे, वो इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। और जो कार्यक्रम की अगर आप रूपरेखा देखें 41 प्रोग्राम्स की, तो किस में हम जाएं और किसको मिस करें यही समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा मेन्यू रख दिया है सामने, ऐसा लगता है कि किसी राजस्थानी आलीशान शादी में चले गए और बफे इतना आलीशान सजा है कि कई बार तो हम संभ्रम में रहते कि किसको ले। अमिताभ बच्चन से लेके, जैसे मैंने कहा, एम्स्टरडैम के डायरेक्टर तक सब उपस्थित है, सबका कुछ ना कुछ सेशन चल रहा है और एक से एक बढ़िया। टॉयज भी है, वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। साइंस का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो अछूता रह गया हो इस कार्यक्रम के आयोजन में। हमको ये निर्देश मिला, दायित्व मिला कि वेलनेस कॉन्क्लेव एक किया जाए और उसका स्वरूप उत्सव का रखा जाए। उसका, क्योंकि साइंस फेस्टिवल है ये, इसमें बड़े बड़े भाषण न हो, स्लाइड प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लोगों से संवाद हो, बच्चों को जोड़ा जाए, यूथ को जोड़ा जाए। तो हमने इस कार्यक्रम को वैसा स्वरूप देने का प्रयास किया। 8 सेशंस रहे सर हमारे इस वैलिडिटरी सेशन के अलावा, इनॉग्रल सेशन के अलावा जो एक्चुअल सेशंस थे हमारे, उसकी शुरुआत हमने की थी वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन से। किचन फार्मेसी वाले कंसेप्ट को लेके चले, प्रोफेसर मीता कोटेचा जी ने इसका नेतृत्व किया और इसकी कंपटीशन ली गई। 61 वीडियोस आए हमारे पास घर से, किचन और हर्बल गार्डन के, बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस, पूरे देश से लोग इससे जुड़े। उसका पहला सेशन हमने किया। उसके बाद सर एक हास्य कवि सम्मेलन किया हमने, जिसमें देश भर से 7 कवि जुड़े, जिन्होंने वेलनेस पे भी कविताएं की, हास्य की कविताएं थी, व्यंग्य की कविताएं थी और आयुर्वेद की भी कविताएं थी। तो बड़ा मजेदार रहा वो भी सेशन। उसके बाद सर हमने एक कंपटीशन लिया। अनेक कंपटीशन के सीरीज में योग की कंपटीशन थी सर। इसमें ऑफिस में बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे योग, इसके वीडियोस मंगवाए गए। देश भर से आए सर वीडियोस। उसमें 2 मास्टर क्लासेस भी हुई जो काशीनाथ जी ने की और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए और बहुत पॉपुलर रहा। फीडबैक बड़ा अच्छा रहा उसका। उसमें भी हमने 5 पुरस्कार वितरित किए। पहले 3, पहला, दूसरा, तीसरा और 2 कंसोलेशन प्राइजेस। बड़े सुंदर वीडियोस है उसके भी, जो सब सारे उपलब्ध है अपने वेबसाइट पे, अपने वीडियोस रिकॉर्डिंग में। इसके बाद सर हमारा इनॉग्रल सेशन था, जिसमें हम लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे कि अपने हेल्थ मिनिस्टर ने एक वीडियो संदेश दिया, हर्षवर्धन जी ने, माननीय हर्षवर्धन जी का बड़ा अच्छा सा वेलनेस पे संदेश मिला हमको वीडियो। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से लाइव जुड़े श्रीपाद यशो नाइक जी, माननीय मंत्री आयुष, और फिर लगभग 20 मिनट का एक बहुत अच्छा कीनोट एड्रेस सेक्रेटरी आयुष श्री राजेश कोटेचा जी ने दिया, वैद्य राजेश कोटेचा। और वेलनेस के आयुष के संदर्भ में उन्होंने अपने आयाम स्पष्ट किए कि हम विदेशी आयुष का जो वेलनेस का जो कंसेप्ट है उससे कैसे अलग है और हम क्या क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, थेरापेटिक वेलनेस। और उससे पैनल डिस्कशन में कुछ 3 हस्ताक्षर बड़े जुड़े थे, प्रताप चौहान जी जीवा आयुर्वेद के, नितिन अग्रवाल जी ब्लिस आयुर्वेद के और रामनाथन जी सीताराम आयुर्वेद कोटक्कल से। और जेनेवा से WHO के भारतीय टेक्निकल एडवाइजर गीता कृष्णन जी भी जुड़े थे। और इतने सारे आयाम, जो जितने भी आयाम हैं वेलनेस के,
इंटरनेशनल, ईस्टर्न वेलनेस, वेस्टर्न वेलनेस, और भारत में जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद का, नॉर्दर्न प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद अलग है, केरल की प्रैक्टिस अलग है, तो उन सारे आयामों को समेटे हुए वो बड़ा अच्छा पैनल डिस्कशन था सर, वैज्ञानिक रूप से। तो ये इनॉग्रल सेशन था। कल इस बात पे हमारी समाप्ति हुई। आज सवेरे से फिर से हमने प्रारंभ किया नुक्कड़ नाटक से। नुक्कड़ नाटक के वीडियोस, 2 वीडियोस थे। कंसेप्ट आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ वेलनेस ही था। उस बहुत सुंदर वीडियो बनाया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लोगों ने, और इसमें फिर सर 2 कीनोट एड्रेस भी रखे थे हमने, क्योंकि आयुष का है ये वेलनेस कॉन्क्लेव, तो होम्योपैथी का एक कंसेप्ट हम लेके आए। तो प्रोफेसर A.K. गुप्ता जी है, उन्होंने होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ वेलनेस पे बात की आज। और फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर नीरज दुआ जी है, उन्होंने पैलिएटिव केयर इन वेलनेस, इस पे ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। बड़ा सराहनीय व्याख्यान रहा उनका भी। इसके बाद सर पोस्टर कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। डॉक्टर अनुराग पांडे BHU जी के थे, उन्होंने उसका संचालन किया था। देश भर से लगभग 141 कार्टून्स आए थे। कार्टून में हमने नियम किए गए थे, कुछ छोटे आसान रखे थे। A4 साइज का पेपर हो, पेन एंड पेंसिल ड्राइंग्स हो, 3 कलर से ज़्यादा ना हो, इस प्रकार के नियम थे। और बच्चों के लिए कंसेप्ट आयुष ऑफ वेलनेस था। और जैसा मैंने बताया कि बॉटनी की स्कॉलर ने उस कंपटीशन को जीता, फर्स्ट प्राइज उसको मिला, गुरुग्राम की लड़की थी। बहुत अच्छा रहा सर कार्टून का, उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा था, फीडबैक बड़ा अच्छा था। उसके बाद सर पोस्टर कंपटीशन जो हमने ली थी पिछले दिनों में, उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए। डॉक्टर रीना अरोरा जी जो जुड़ी हुई है, उन्होंने उसका संचालन किया था। उन्होंने बड़ा बेहतरीन वीडियो प्रेजेंटेशन किया, एक कीनोट एड्रेस भी दिया वेलनेस के कंसेप्ट पे, और जो उन्होंने वार्ता भी की थी सारे बच्चों के साथ। तो 5 अवार्ड सर हमने उसमें भी दिए पोस्टर पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज और 2 कंसोलेशन प्राइज। उसके बाद सर ऐसे कंपटीशन ली गई थी बहुत थोड़े से समय में, पूरे देश भर में पूरा जो नेटवर्क है आयुर्वेद का उसका यूज करके लगभग 161 एसेज आए सर, और उसको पढ़ के उसका रिजल्ट भी बनाया गया। पूरे देश भर से 20 जजेस बनाए गए थे, मैंने असम से लेके गुजरात तक, पंजाब से लेके नीचे केरल तक सारे प्रकार के लोगों को जज बनाया, और उन्होंने अपने रिजल्ट्स दे दिए। 5 वो प्राइज हमने अनाउंस किए। और उसके बाद सर फिर अर्पण भट्ट साहब का ये म्यूजिक थेरेपी वाला 1 घंटे का बहुत अच्छा सेशन, 3 मिलन वसावड़ा जी और केदार जी, इन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए, रागदारियां बताई, और उसका रोगों पे कैसा असर होता है इसका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। बहुत अच्छा रहा सर वो सेशन भी। ये मैंने आपको सर पूरा ओवरव्यू दिया है वेलनेस कॉन्क्लेव का। वेलनेस के जितने आयाम हो सकते हैं, सिर्फ हेल्थ के अलावा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और अन्य चीजों को हमने, हैप्पीनेस को जोड़ने की कोशिश की। हैप्पीनेस योग एक अलग से हमने सेशन लिया था, हास्य योग, जो शिव कुमार हरती जी ने कंडक्ट किया आज सवेरे। आचार्य मुकुल जी ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, हम लोगों को भी खड़े करके हास्य योग की एक्सरसाइजेस कराई सर। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा आनंददायक रहा। तो इस प्रकार से सर हमारा एक कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। तो मैं ब्रीफ रिपोर्ट मैंने प्रस्तुत की है वैलिडिक्टरी। मैं प्रोफेसर संजीव शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन स्वरूपी एक वैलिडिटरी स्पीच दें। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, जयपुर। धन्यवाद पवन जी। परम सम्माननीय श्री जैन सहस्त्रबुद्धे जी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि अनूप भाई जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स PCIM के अध्यक्ष ज्ञानदेव पुजारी जी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र पवन जी, पांडे जी, प्रीति जी, और जितने भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं, और इस वैलिडिक्टरी सेशन को आउट द वर्ल्ड जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा सभी को सादर नमस्कार, अभिनंदन। और मैं धन्यवाद करता हूं विज्ञान भारती का और इस सेशन के आयोजक मंडल का कि आपने मुझे इस सेशन में, वैलिडिक्टरी सेशन में बुलाया और
मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे कार्यक्रम इस वेलनेस कॉन्क्लेव में हुए हैं, निश्चित रूप से मैंने भी कुछ को देखा है। जितना समय मुझे मिल पाया मैंने भी उसका आनंद लिया, उससे लाभान्वित हुआ हूँ। और मतलब बहुत बढ़िया ये सत्र 2 दिन का जो ये कॉन्क्लेव था, ये बहुत अच्छा रहा है। और निश्चित रूप से विज्ञान भारती जिन्होंने इतना बड़ा ये सपना देखा और उसको मूर्त रूप दिया, साकार किया, ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमें सपने देखने चाहिए, दिन में सपने देखने चाहिए और उनको मूर्त रूप और साकार रूप देना चाहिए। और जब पूरे हों तो उनका आनंद उठा करके, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे और बढ़ने के कदम हमें उठाने चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। बात वेलनेस की हो रही है और वेलनेस पे पवन जी ने अभी फरमाया कि पश्चिम या वेस्टर्न वेलनेस, ईस्टर्न वेलनेस या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेलनेस, निश्चित रूप से ये अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ही है, एक ही पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज होते हैं या होना चाहिए, लेकिन पथ या मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। भारतीय चिंतन, जहां तक वेलनेस की हम बात करें, भारतीय चिंतन आज जो पश्चिम जो एक वेलनेस कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, मैं उसकी बहुत सराहना भी करता हूं। और एक उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको लाया है, उसके लिए मैं मतलब बहुत उससे वो प्रेरणादायक है। लेकिन भारतीय चिंतन हमेशा वेलनेस का रहा है और अल्टीमेट वेलनेस का या साल्वेशन का रहा है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ एक भारतीय चिंतन वेलनेस का रहा है। और भारतीय जो चिंतन है वो उसका आयुर्वेद तो एक अंग है, लेकिन वो चाहे वेदों से शुरू करें, पुराणों से शुरू करें या उपनिषदों में देखें, कहीं भी देखें हम, तो एक वेलनेस की बात, एक अंडरकरंट ऑफ वेलनेस इज देयर इन द इंडियन फिलॉसफी। और इंडियन फिलॉसफी जो है वो धर्म की बात करता है। धर्म, यहाँ धर्म का किसी संप्रदाय या रिलीजन से मेरा नहीं कहना है, मानना है। धर्म मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, दैट वी शुड रियलाइज अवर सेल्फ कि हम हैं क्या। और जब वो इनर कोर से हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम वेलनेस की तरफ बढ़ते हैं। और वो उसी को हम भारतीय चिंतन धर्म कहते हैं। धर्म कोई एक परंपरा नहीं है, कोई दूसरा, जिसको हम आज की तिथि में हम जिसको रिलीजन कहते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब है कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचान करके एक मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना। ये भारतीय चिंतन की मूल धारा रही हुई है। जो जितने सांसारिक विषय हैं, संसार में रहते हुए उनका उपभोग करते हुए भी उनमें संलिप्त ना होना, ये हमारी एक जो विशेष विधि है या विशेष एक चिंतन है, वो निश्चित रूप से वेलनेस की तरफ हमें ले जाता है। और जब हम वेलनेस की बात करते हैं या आधुनिक रूप से इसको डिफाइन करने की हम बात करते हैं, तो वेलनेस बेसिकली इज ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइसेस टुवर्ड्स a healthy and fulfilling life. अब यहाँ पर fulfilling life जो है, that is very important. Healthy is one part. If a healthy person may not be may not feel a fulfilling life, and sometimes vice versa can be there. उल्टा भी हो सकता है कि जो आदमी स्वस्थ नहीं है उसमें भी वेलनेस की सेंस हो सकती है, और जो हेल्दी है उसमें वेलनेस की सेंस नहीं भी हो सकती है। सो फिजिकली हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना या सिर्फ स्पिरिचुअली हेल्दी होना, ये अलग अलग अंग हैं, और सिर्फ इनको लेकर के ही हम वेलनेस नहीं हो सकती है। हमें एक पूर्ण रूप से वेलनेस के हमें आदत डालनी चाहिए, उस मार्ग पर हमें बढ़ना चाहिए। और इसमें जो चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक श्लोक है जो सभी लोग हम बड़े सामान्यतः सबसे पहले आयुर्वेद में आते हैं जब, तो उसी को पढ़ते हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। आयुर्वेद की एक परिभाषा दी गई है, और इस परिभाषा को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। जहां तक मेरा अपना मानना है कि जो हित अहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट दिया है हेल्थ को लेकर के भी, लेकिन हेल्थ से ज्यादा है कि हमारी आयु हितकर कैसे हो। हितकर किसके लिए? मेरे लिए भी हितकर हो और वो दूसरों के लिए भी हितकर हो। तो
एक इसका ब्रॉड अम्ब्रेला एस्पेक्ट आयुर्वेद में दिया है। और अहितकर अगर मेरी आयु है तो मेरे लिए अगर अहितकर है वो समाज, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, संपूर्ण जगत के लिए वो अहितकर ही है और वो वेलनेस नहीं हो सकती। इसलिए हमें हितकर आयु बनानी है और उस हितकर आयु के कई सोपान हो सकते हैं और उन जो सोपान हैं उनको हमें, उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें कौन कौन से सोपान ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मात्र एक चिकित्सा या थेराप्यूटिक्स जो हैं उनको लेकर के ही हम नहीं चल सकते हैं। थेराप्यूटिक कैन बी वन पार्ट ऑफ द वेलनेस, हमें उससे ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको सोचना है। मैं जहां तक अपनी एक अगर सांसारिक वेलनेस की या एक ऑर्डिनरी वेलनेस की बात करूं तो मैं 3 पार्ट्स में लाइफ को डिवाइड करता हूं, या 3 जो हमारे एंगल्स हैं उनमें डिवाइड करता हूं। एक पर्सनल एंड फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड वर्क प्लेस। क्योंकि हम सभी इस सोसाइटी का, इस परिवार का या इस संसार का हिस्सा है। और अगर हम अपना लाइफ साइकिल है, जो जितना टोटल लाइफ साइकिल है उसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन तीनों में सामंजस्य आपस में बिठा लेते हैं, जिसमें पर्सनल एंड फैमिली लाइफ है, पर्सनली हम हेल्दी रहें, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम हेल्दी रहें, हमारी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी और फैमिली हेल्दी एंड यही रहे। इसी तरह से कम्युनिटी के साथ हमारा एक अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप हो और वर्क प्लेस में हमारा अच्छा अगर बैलेंस रिलेशनशिप हो तो हम एक बहुत बढ़िया वेलनेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इन चीजों में, चाहे अपना पर्सनल या फैमिली या कम्युनिटी और सोसाइटी और वर्क प्लेस, ये 3 जो सेक्टर्स हैं इसके बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और वो जब वो सामंजस्य नहीं बैठता है तो उसके कारण हम कई तरह के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और दूसरे कई तरह के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। और जो वेलनेस की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। फिजिकली हो सकता है कोई आदमी हेल्दी हो, लेकिन वो जो जब सोसाइटी के साथ या फैमिली के साथ या अपने वर्क प्लेस में अगर अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको अटेंड करने की उसको जरूरत है। जब हम इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम इसका इफेक्ट या इसके जो बाकी एंगल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं वेलनेस के, तो उसमें इमोशनल वेलनेस है, फाइनेंशियल वेलनेस है, सोशल वेलनेस है, स्पिरिचुअल वेलनेस है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस है, फिजिकल वेलनेस है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस है और एनवायरमेंटल वेलनेस है। इन सभी पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो आयुर्वेद का सिद्धांत है या भारतीय चिंतन की जो परंपरा है उसको अपना करके अगर हम इन सारे जो एंगल्स हैं, सारे जो आयाम हैं, इनके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और वेलनेस में मैं फिर से एक स्ट्रेस देना चाहता हूं, यहाँ पर मेरा जो अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ये आज की तारीख में कोई सोचे कि मैं आज स्वस्थ नहीं हूं इसलिए मैं वेलनेस की तरफ नहीं बढ़ सकता हूं, या मुझे ये फलां बीमारी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या दूसरी किसी तरह की बीमारी है और मैं वेलनेस में नहीं आता हूं। ऐसी सोच गलत है। एक फिजिकली अनहेल्दी आदमी भी वेलनेस की तरफ बढ़ सकता है, एक आत्म संतोष की तरफ बढ़ सकता है, एक यूजफुल लाइफ जी सकता है। उसको उस नेगेटिविटी से बाहर आने की जरूरत है और एक अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो बहुत यूजफुल हो सकता है। तो इसको एक कंपोजिट रूप में देखने की जरूरत है, ना कि एक सेक्टर, अगर कोई एक सेक्टर किसी कारण से अगर मान लीजिए फिजिकल मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो वो वेलनेस की तरफ नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। तो यही मानना है कि हमें जो भारतीय चिंतन है और आयुर्वेद के माध्यम से हम वेलनेस की तरफ बढ़ें, और उसके लिए बहुत सारे हमारे पास सिद्धांत भी हैं, हमारे पास ज्ञान भी है, और हम इस संसार का बहुत भला, इस देश का और प्रत्येक व्यक्ति का हम जो भला है वो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये समय दिया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, आपके आशीर्वचनों के लिए हम एकदम कृतज्ञ हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे इनसाइट लेके। मैं कुछ बाद में बात करता हूं आपसे। सर जयंत सहस्त्रबुद्धे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, एक पूरे विजन के बारे में हमको कुछ आशीर्वचन दे, पूरा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 और फिर उसके अंदर ये उसका छोटा सा
अपत्य वेलनेस कॉन्क्लेव। आप विजन जयंत सहस्त्रबुद्धि जी, मेंटर वेलनेस कॉन्क्लेव के और IISF के। नमस्कार। नमस्कार सर। इस वेलनेस कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में जो सारे अपने बंधु पधारे हैं, अनूप जी ठाकुर, जयंत जी देवपुजारी, संजीव जी शर्मा और अन्य सारे महानुभाव, सर सादर अभिनंदन। तनुजा मिश्री जी भी ज्वाइन कर चुकी है सर। नमस्ते तनुजा जी। और अन्य भी महानुभाव जुड़े होंगे, सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूं। अन्य भी वेलनेस कॉन्क्लेव से जुड़े हुए बंधु भगिनी इसके कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शायद वेलनेस कॉन्क्लेव ये पहला कार्यक्रम होगा, 2 दिन अच्छी तरह से पूर्ण होकर आज उसका समापन हो रहा है। जैसे अभी पवन जी ने उल्लेख किया कि एक अपने देश का अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, उसका ये अंग था। उन्होंने बताया वैसे 41 प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग इसमें करने का प्रयास हुआ। विचार ये था कि विज्ञान अपने जीवन के सभी अंगों से जुड़ा हुआ इस प्रकार का विषय है। तो ऐसे सभी जीवन के क्षेत्रों के साथ विज्ञान का जो रिश्ता है, उसको लोगों के सामने उजागर करना मनोरंजक पद्धति से, ये इस विज्ञान उत्सव की कल्पना है। सामान्यतः विज्ञान को एक बड़ा गंभीर और कठिन विषय माना जाता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र के लोग ये अनुभव करते हैं कि विज्ञान करने में कितना आनंद आता है। तो ये आनंद विज्ञान करते समय जो आता है, वो लोगों तक पहुंचे, लोग विज्ञान को समझे और विज्ञान की जो दृष्टि है वो अपने जीवन में उतारे। ये एक सरल मार्ग से, सहज मार्ग से बात होनी चाहिए, ऐसी इसके पीछे कल्पना है। और मुझे आनंद है कि 2015 में इस अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की यात्रा शुरू हुई। 5 वर्ष यानी वार्षिक कार्यक्रम होने के कारण 5 कार्यक्रम हुए और इस वर्ष कार्यक्रम करने का स्वाभाविक निश्चित था, लेकिन मार्च महीने में जैसे आए वैसे एक कोरोना के इस चुनौती भरे विषम परिस्थिति में हम सारे आ गए और विचार ये चला कि कैसे कर पाएंगे इसको। प्रत्यक्ष मिलने में जो आनंद होता है उत्सव में, वो एक अलग प्रकार का आनंद होता है। तो इस साल शायद ये हम नहीं आनंद प्राप्त करेंगे, लेकिन सभी ने ऐसे सोचा कि धीरे धीरे इस कालावधि में इस आभासीय मंचों के द्वारा एक दूसरे से संवाद करने का अभ्यास लगभग सभी को हो गया। इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको इस प्रकार से करके देखेंगे और 20 अक्टूबर को इसका निर्णय हुआ कि अब ये करेंगे, क्योंकि ये 2020 का उत्सव करना है, ये कल्पना थी। और 20 अक्टूबर को ये तय हुआ कि इसको करेंगे ही, जरूर करेंगे। उसके बाद सब प्रकार की तैयारी शुरू हुई और बार बार मन में आता है कि आजकल हम IPL की, क्रिकेट की 2020 मैचेस का बहुत अभ्यास हमें हुआ है और उसमें जैसे होता है कि हर बॉल पर सिक्सर ही मारनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक बड़ी चुनौती का स्वीकार करते हुए CSIR के सारे यहाँ के वैज्ञानिक और विज्ञान भारती में हम सभी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम का विचार किया, सारी कल्पनाएं बनी, तैयारी शुरू हुई और एक अच्छा संयोग मिला कि 22 दिसंबर ये श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन है और 25 दिसंबर ये माननीय अटल जी का जन्मदिन है। ये विज्ञान महोत्सव भी 4 दिनों का होता है, तो ये संयोग से अच्छे 4 दिन मिले, 22 से 25 विज्ञान के लिए सबसे अच्छा एक कालावधि समय, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जी तो अपने देश के गणितज्ञ है और इस दिन को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिन ऐसे माना जाता है। और अटल जी ने विज्ञान की समाज के विकास में, देश के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको ध्यान में रखकर जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा जोड़ा। तो अटल जी का स्मरण करना, तो ऐसा एक बड़ा सुंदर ऐसे कालावधि हमें प्राप्त हुआ और उसमें ये सारे कार्यक्रम हमने निश्चित किए। और गत वर्ष भी पहली बार वेलनेस कॉन्क्लेव किया था, तो इस साल वो सारे कार्यक्रम करने वाले ही है ऐसे स्वाभाविक सबको लगा।
लेकिन गत वर्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने घोषित किया था कि अगले साल हम 40 कार्यक्रम करेंगे। तो हमने उस संकल्प को भी इस समय भी कायम रखा और इस वर्ष हम लगभग 41 कार्यक्रम एक छत के नीचे इस विज्ञान महोत्सव के अंदर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा हम सभी ने समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग बच्चों से लेकर किसान, कलाकार, अलग अलग क्षेत्र के ऐसे सारे लोग जिनका विज्ञान के साथ बड़ा रिश्ता है, ऐसे जुड़े हैं। एक बड़ी विशेष कल्पना इस समय हमने रखी कि जैसे हम इस संकट की घड़ी में अपने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात सबको कही, घोषणा की और उसके साथ साथ विज्ञान को जोड़ा उन्होंने और कहा विज्ञान के आधार पर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जब सब लोग एक साथ आए तब सभी के ध्यान में यह आया कि अपने देश का चरित्र ऐसा है कि हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, तो पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। पश्चिमी जगत की दृष्टि है कि विश्व को एक बाजार ऐसे समझना, ग्लोबल मार्केट। लेकिन भारत ने सदियों से पूरे विश्व को अपना परिवार समझा। तो हम अपने देश में जो विज्ञान की बातें विकसित करेंगे वो केवल भारत के लिए सीमित नहीं होगी, पूरा विश्व उसका लाभ उठा सकता है। तो ये सोचकर इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण, इन दोनों के लिए विज्ञान का उपयोग हम कैसे करेंगे, इस पर एक कल्पना आधारित होकर इस कार्यक्रम का विचार किया गया। तो इस दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम इस विज्ञान महोत्सव में अब हो रहे हैं। एक अलग प्रकार का आनंद सबको आ रहा है। कल से मैं देख रहा हूं, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी एक विश्व कीर्तिमान करने का भी कार्यक्रम इसमें किया और कल और आज बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के छात्रों ने मिलकर ये कार्यक्रम कीर्तिमान स्थापित किए और ये कीर्तिमान इसके पूर्व किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, ऐसे विषय है। और पहली बार बड़ी संख्या में कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 6,874 छात्र जुड़े थे। आज के कार्यक्रम में 10,288 छात्र जुड़े थे। कल लगभग 11,000 छात्र जुड़ने वाले हैं। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि देश भर में एक प्रकार से विज्ञान के साथ लोगों को जोड़ने का किस प्रकार का काम इस उत्सव के द्वारा हो रहा है। वेलनेस कॉन्क्लेव के पीछे भी अपनी एक कल्पना ऐसी थी कि अभी विज्ञान की जो मुख्य धारा है वो मनुष्य को रोग आने के बाद ही रोग के बारे में अनुसंधान शुरू करती है। मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थता को प्राप्त करना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और ये ध्यान में रखकर गत वर्ष ही हमने इसका विचार किया कि केवल हेल्थ के बारे में अनुसंधान वगैरह सारी बातें चलती है, आईसीएमआर उसका दायित्व लेते हैं और वो उसको अच्छी तरह से करते हैं। इस समय भी पहली बार उन्होंने हेल्थ को एक एकात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करके उसमें एक सत्र ऐसे रखा कि जिसमें योग, आयुर्वेद आदि सारी बातें एक साथ लाने का प्रयास किया। लेकिन वेलनेस की अपनी जो कल्पना है, सदियों से भारत ने यही बात विश्व को बताई है कि हम स्वस्थ कैसे रहे, इसका अनुसंधान अपने देश में हुआ और उस प्रकार का विज्ञान अपने देश ने विकसित किया। और विश्व योग दिन के माध्यम से पूरे विश्व ने इस बात को समझा कि भारत के पास किस प्रकार का विज्ञान है और विश्व की बड़ी अपेक्षा भारत से है कि इस प्रकार का अगर एक ज्ञान हम उनको दे तो सारा विश्व स्वस्थ हो सकता है। तो इस कल्पना को लेकर हमने इस वेलनेस कॉन्क्लेव की कल्पना की है। और जैसे पवन जी ने एक प्रकार का वृत्तांत अपने सामने रखा कि बहुत ही रोचक और रंजक पद्धति से कई प्रकार के कार्यक्रमों की कल्पना 2 दिन में की गई और बहुत ही अच्छी प्रकार से वो संपन्न हुए। तो एक प्रकार से केवल सफलता नहीं, तो एक अच्छी सार्थकता भी इस विषय की अब सामने आई है। और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि इस प्रकार का एक 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इससे हमें बहुत कुछ भविष्य के लिए दिशा दर्शन होने वाला है। तो एक सार्थक कार्यक्रम का आज समापन, उसके लिए हम सब एकत्रित आए हैं, लेकिन एक उत्सव का आनंद लेकर हम सब अगले वर्ष की ओर बढ़ेंगे और एक नई दृष्टि लेकर समाज के अंदर
समाज को स्वस्थ बनने की दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास मुझे इस कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में कुछ विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पर रुकता हूं। नमस्कार। मुझे सर अन्य कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं आप सबकी अनुमति चाहूंगा कि आपके साथ रहना तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन और एक कार्यक्रम में जाना है मुझे, तो उसके लिए आप कृपया मुझे अनुमति दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्कार। सर हमारा यह आग्रह है कि आपने जैसे अनूप भाई से कहा कि आप उनको जाके प्रत्यक्ष मिलेंगे, वैसे ही जयपुर भी पधारिए, आप प्रत्यक्ष आपके साथ ज्यादा समय बिताएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। नमस्कार। प्रणाम सर। नहीं सर, कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार सामने रखें, हमें आशीर्वाद देके अनुग्रहित करें। प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली। नमस्कार सभी महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं। वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज के मुख्य अतिथि हैं, ऐसे डॉक्टर पवन जिससे हमें पता चला था। डॉक्टर वैद्य अनूप ठाकर जी, प्रोफेसर अनूप ठाकर, एनआई के डायरेक्टर, बिल्कुल हसमुख जो चेहरा और एक डायनेमिक डायरेक्टर के नाम से जाना जाते हैं, और अभी हाल ही में एक डी नोवो यूनिवर्सिटी का स्टेटस उनके लीडरशिप में एनआई को प्राप्त हुआ है। तो प्रोफेसर संजीव शर्मा और जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, जिन्होंने अभी बहुत ही एक उत्साहवर्धन करके सबको आशीर्वचन दिया। प्रोफेसर पवन कुमार गोडतवार, जिन्होंने जो अभी 41 वेलनेस कॉन्क्लेव के जो प्रोग्राम्स आयोजन किए, वो आयोजकों के मुख्य सूत्रधार रहे, और यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव और 41 कार्यक्रम के सभी आयोजक। जयंत देव पुजारी जी भी अध्यक्ष CCIM। अच्छा, ये तो और भी सौभाग्य, सोने पे सुहागा है। तो हमारे जो जितने भी प्रोग्राम्स अभी जो CCIM के जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं और एक शुद्धि प्रक्रिया चल रही है, उसके सूत्रधार जयंत देव पुजारी जी भी हमारे लीडर है। तो उन सबको मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से, और मेरे कलीग भी यहाँ पे जुड़े हैं, डॉक्टर प्रजापति है, शालिनी, शिवानी और डॉक्टर राजगोपाल, सभी आज मेरे साथ यहाँ पे है। तो ये भी आज आपका कार्यक्रम सब महानुभावों को प्रणाम। यस तो सबकी ओर से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की ओर से हमें, और प्रोफेसर नीता कोटेजा और मेरे कुछ कलीग भी इसी 41 प्रोग्राम में शामिल थे, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर अरुण, ये भी हमें कह रहे थे फिल्म और बाकी डॉक्यूमेंट्री में भी वो थे। तो सबको मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से हमारा प्रणाम। और आप सब लोगों को सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं। ये बहुत ही, जैसे कि जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा, रोचक अनुभव है। और पिछले जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि 10,000 जुड़े, 6,000 जुड़े, तो एक जो मासेस तक पहुंचने का जो एक बहुत ही अच्छा ये माध्यम है। और आपने जो आयुर्वेद की एक नस है, नर्व है, वेलनेस जो हमारी स्ट्रेंथ है, प्रिवेंशन इज आवर स्ट्रेंथ, और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण हम कहते हैं। और आयुर्वेद का अगर हमने, सब लोग ये कहते हैं कि इट इज अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इसका मतलब ही ये हुआ कि जीवन जीने की कला, और कैसे जीवन तो स्वास्थ्य और खुशनुमा जीने की जो कला सिखाता है। इट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अगर आयुर्वेद, ये आयुर्वेद है, आयु का ज्ञान है, इट इज अ नॉलेज सिस्टम। तो हमारी एक विज्ञान जो आज इंटरनेशनल साइंस का एक जो बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है, और आयुष का विज्ञान पूरी वर्ल्ड में जा रहा है। मतलब आयुर्विज्ञान पूरे वर्ल्ड में हम ले रहे हैं। तो उसमें रिसर्च एंड विज्ञान इज नॉट ओनली रिलेटेड टू drug research or clinical research, but it is more than related to
the knowledge system of living healthy and happy life. किसी ने ये नहीं कहा कि what is the happiness index, और अगर it is knowledge system of healthy and happy life, तो वो happiness के पैरामीटर किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, और उसका विज्ञान कहाँ है, तो ये आयुर्वेद में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने 41 प्रोग्राम किए, ऐसे छोटे छोटे, खाने में भी खुशी है, स्वास्थ्य है, healthy diet does not mean it is a complete tasteless and bland food, but we can really add the taste in our पथ्यकर आहार। ये आज शायद आपकी रेसिपी ने दिया होगा, और मैडम मीता कोटेचा और सारे कलीग्स इससे बढ़िया और क्या कह सकते हैं, नाय के पूरे कलीग। वैसे ही कल्टीवेशन टू एप्लीकेशन, अगर मेडिसिनल प्लांट है तो वहीं से ही हमारी एक धरोहर शुरू होती है, और हमारी जो पूरी जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको लेकर ऑब्जर्वेशन को हमने साइंटिफिक पैरामीटर को उसमें जोड़ के जो साइंटिफिक एविडेंसेस आए वो उस जमाने के जो साइंटिस्ट है जिसका नाम चरक, सुश्रुत और वाग्भट, उन्होंने अपने संहिता में उसको कोडिफाइड किया, और दैट एविडेंस बेस्ड साइंस आज हम दोबारा आज के सिद्धांतों पे दोबारा हम रिवैलिडेट कर रहे हैं। तो विज्ञान, ये आयु का ज्ञान पहले प्राकृत था, उसको संस्कृत किया, उसको विज्ञान करते हुए ही हमने हमारे संहिता में बद्ध किया, और उसी को ही हम तत्व शास्त्र को लेके व्यवहार में इसका पालन कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और जो हमारा वेलनेस की जो स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद मतलब स्वास्थ्य रक्षणम, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ये कोविड के 19 ने हमें एक सबक सिखाई कि आज भी पूरी दुनिया में, अगर आज दूसरा भी स्ट्रेन आ गया है, ब्रिटेन पूरा लॉकडाउन में है, लेकिन आज भी चर्चा हो रही है वो वैक्सीन की हो रही है, ना कि सॉल्यूशन। मतलब हर कोई खुश है कि वैक्सीन का ये स्ट्रेन आया, वैक्सीन का ये स्ट्रेन आया, लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर थे, इससे कई गुना कारगर हम दे चुके हैं पिछले 9 महीने में। हमने वैक्सीन जितना ही हमारा अणु तेल है, हमारी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स है, वो तो वैक्सीन का ही काम करती है, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी बढ़ा रही है। तो ये एक स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी जीना या आयुर्वेद जीने की जो कला है, हमारा आहार, दिनचर्या, आचार, विचार और जो हमारे त्रयोपस्तंभ है, तो ये सब का अगर हमने पालन किया तो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस और सोशल फ्रंट पे भी हम एक बहुत संतुलित और खुशीपूर्ण ऐसे आप जिंदगी जी सकते हैं। और कोविड-19 में हमने ये सिद्ध किया कि हमारा जो दिनचर्या का, आहार का और रसायन, ये तीनों का अगर एक और उसके साथ साथ मेंटल जो हेल्थ का जो कंपोनेंट है उसको अगर जोड़ा, तो हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी जो CHC का जो प्रयोग किया, जिसमें नाम ही केयर विद कंपैशन है, और आज भी हम कहते हैं कि 99% पेशेंट खुशी से घर गए, और उन्होंने जाते समय यही कहा कि मैं पॉजिटिव था तो निगेटिव हुआ, लेकिन मैं पॉजिटिव होते हुए जा रहा हूँ। तो एक इलनेस से वो वेलनेस की तरफ गए। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी ये वेलनेस की ओर से कि ये वेलनेस से भी आगे आयुर्वेद। So it is more than a wellness. We give an additional advantage of happiness. So this science gives wellness as well as happiness. तो मैं ये सुझाव दूंगी, ये इंटरनेशनल विज्ञान का जो प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट टाइम में भी 41 से एक जोड़ कंपोनेंट जोड़िए, तो वेलनेस के साथ साथ आप एक हैप्पीनेस भी कॉन्क्लेव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ज्ञान है आयुर्वेद का वो सही तरह से पूरी दुनिया में जाएगा, और उसके साइंटिफिक पैरामीटर्स भी हम ढूंढ लेंगे, वो हमारे पास है। लेकिन जो लोग साइंटिस्ट नहीं दिखा पा रहे, इसका मतलब वो शास्त्रीय नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि absence of evidence is not an evidence of absence। तो हमारा तो है ही, लोग नहीं समझ पा रहे। तो हम सब मिलके अगर इस विज्ञान को खरे तौर पे उतारेंगे, तो ये वेलनेस के थ्रू, जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत
कि और अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री को ही बूस्ट दे तो मुझे लगता है कि हम एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो 67% से भी ज्यादा लोग अननेसेसरी दवा खा रहे हैं। आज जो डेथ हो रही है कोविड में वो महंगी रासायनिक केमिकल दवा खाने से हो रही है। हमारा एक डेटा ये कहता है कि जिन्होंने केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन ली उनको कोई भी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम ना फटीग ना कुछ नहीं होता है। तो अगर ये हमने कहा कि हम इक्वल इफेक्ट दे रहे 99% विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, आई थिंक दैट्स द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द साइंस in this, and that we need to promote on such platforms. So wellness को आगे बढ़ाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया सॉफ्ट पावर, which is to be promoted across the globe and we could be the leader. इंडिया अगर लीडर होता है सॉफ्ट पावर में तो उसमें आयुर्वेद की हमारी वेलनेस ये दुनिया के लिए देन है। अगर हमारी रसायन है, हमारा खान पान है, जीवन शैली की कला है, उसका अवेयरनेस, आई थिंक पूरी दुनिया के लिए हमारा स्वस्थ और खुशी भरा एक जो मैसेज है वो हमारी देन है, इस प्लेटफॉर्म से हम देंगे। और लास्टली मैं इतना ही कहूंगी कि जैसे वेलनेस जो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में हो रहा है उसको प्रमोट कर रही है चैंपियन सेक्टर्स की सिस्टम से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी वेलनेस टूरिज्म की गाइडलाइन बनाई है। तो मे बी वी कैन बी दिस वेलनेस टूरिज्म आल्सो कैन बी प्रमोटेड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम श्योर योर 41 मॉड्यूल्स हैव आल्सो। आप अगर एक आध कॉम्पिटिशन वेलनेस टूरिस्ट ऑपरेटर की भी रखते तो शायद वो टूरिस्ट सोमतीरम जैसे या हमारे आयुष के भी पंचकर्म के कई सारे आ जाते और आपने शायद किए भी होंगे। तो मे बी हमारी जो एनआईज है उनमें भी आप वेलनेस का एक कुछ ऐसा कंपटीशन करिए और मिस्टर आयुर्वेद और मिस आयुर्वेद करिए और फैकल्टी में भी जो स्वास्थ्यपूर्ण है तो शायद हम सब लोग थोड़ा और पतला होने की कोशिश करेंगे। तो आपको अंत में बहुत बहुत बधाई पवन जी। और आप नाम ही पवन है, पवन पुत्र है, तो हम कहीं से कहीं तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हम सब लोगों को खींच के आपने एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम अभिभूत हुए, आपने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से समय निकाला और आपके अन्य लोगों को भी साथ में जोड़ा, आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स को, आप सबको, प्रदीप प्रजापति जी और सारे लेजेंडरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लोगों को हमारी तरफ से सादर नमस्कार। मैडम आपको आपके वक्त के लिए आपने समय दिया, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े आशीर्वचन और हमको नए नए आइडियाज दिए अगले साल के लिए। फैशन शो का एक तो हमने टिक कर दिया चेक बॉक्स कि आयुर फैशन शो, ये भी हम जोड़ देंगे उसमें। स्वास्थ्य मिस आयुर्वेद, ऐसे स्वस्थ आयुर्वेद, मिस फैकल्टी ऐसे बिल्कुल। हाँ हाँ, टीचर्स के लिए भी हम एक अवार्ड तो आपके लिए रिजर्व हो गया मैडम अगले साल का। तो आप पार्टिसिपेट करोगे तो दूसरे किसी को कैसे मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एनआईए और आईपीजीपी और सभी इंस्टीट्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बिल्कुल रहता है। बिल्कुल कंपटीशन करते तो हम से स्वस्थ और सुंदर, क्योंकि सुंदरता स्वस्थ पूर्ण रहने में ही है। बिल्कुल तो मैडम, कोई हंसमुख रहता है वो स्वस्थ और सुंदर ही होता है। तो हम करेंगे। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको, आपके मार्गदर्शन के लिए। कुछ नई आइडियाज भी मिली, पर मैं आपको ये बता दूं, हमने हैप्पीनेस योगा नाम से ही रखा था। हैप्पीनेस तो कंपोनेंट था इस बार, और आपने जो 2-3 नए संदेश दिए हमको तो मैंने नोट कर लिए। हम अगले बार जरूर आपके और पहले से ही एडवाइस लेंगे। इस बार समय की भी बहुत कमी थी। मैंने, जिसको कहते हैं ना हथेली पे सरसों उगाना, राजस्थान में कहावत है कि हथेली पे सरसों उगाना, वैसा करना पड़ा। इस बहुत कम समय में हमने और नाम ही आपका पवन है ना, तो आप पवन पुत्र हो तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, संजीवनी ला सकते हो। ये सभी प्रोग्राम में नहीं, संजीव सर हमारे पास है, संजीवनी के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एनआईए को रिज्यूविनेट तो कर ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आमंत्रित करता हूँ वैद्य जैन देव पुजारी जी को, चेयरमैन बीओजी एंड नेशनल कमीशन
for Indian Systems of Medicine, CCIM. Jayan Dev Pujari ji, legendary physician. I welcome you, sir. आपका हार्दिक स्वागत है. आपके आशीर्वचनों के लिए हम लालायित आपका इंतजार कर रहे हैं. जैन देव पुजारी सर. सभी को मेरा नमस्कार. यहाँ पर सभी मित्र वर्ग में कहूँगा, सभी बंधु वर्ग, अनूप ठाकर जी, संजीव जी, तनुजा जी, पवन जी, अतुल जी भी दिख रहे हैं. सभी लोगों को, प्रीति चावड़ा जी भी दिख रही है. सभी को मेरा नमस्कार. ये जो विषय अभी चल रहा है वेलनेस का, ये उसको उत्सव के रूप में जो ढाला गया वो बहुत ही मजेदार है. इसको उत्सव के रूप में शायद पहली बार इस प्रकार से लिया गया होगा. और इसमें जिन जिन लोगों ने भाग लिया उनका निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है. और इसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ. ये वेलनेस शब्द तो ये पॉपुलर शब्द होने के कारण हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा जो शब्द है उसका वो स्वास्थ्य है. और स्वास्थ्य इसलिए है कि उसकी जो व्याख्या है समदोषा समाधान, तो वेलनेस में प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन को जोड़ना पड़ता है. और संजीव जी ने जैसे उसके साथ में फाइनेंशियल स्वास्थ्य भी जोड़ा और बाकी बहुत सारे एनवायरमेंटल स्वास्थ्य भी जोड़ा, बहुत सारे कंपोनेंट जोड़े, तो उसका पैराग्राफ बनेगा, श्लोक नहीं बनेगा 2 लाइन का. वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं स्वास्थ्य इसको कहना ज्यादा उचित समझूंगा वेलनेस के अलावा. लेकिन ठीक है, उपयोग के लिए वेलनेस एक कैची शब्द है, वो वेलनेस का ही उपयोग हम. लेकिन हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये स्वस्थ हमारा जो शब्द है उसके डेफिनेशन के साथ में रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. इस मौके पर मैं एक विषय को रखना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हम शरीर की बात करते हैं. और शरीर की जब हम बात करते हैं तब शरीर की व्याख्या को हमने ध्यान में रखना चाहिए. शीर्यते इति शरीरम, जो जिसका रोज क्षरण होता है, जिसका रोज एजिंग होता है, ये जो शरीर है उसको, उसका वेलनेस और उसके अंदर रहने वाले मन और आत्मा का वेलनेस इस प्रकार से. अब इसके बारे में मैं हमेशा उसका उदाहरण देते रहता हूँ. अनुप जी से उस पर बात भी हुई है, कई बार हमारी चर्चा भी हुई है. उसमें ये जो हमारे शरीर का जो क्षरण होता है वो तो हम पूरे शरीर का विचार हम हमारे उम्र के हिसाब से लगाते. जब लेकिन आदमी 40 साल का होता है, 50 साल का होता है, तो हम बोलते हैं कि इस शरीर को 50 साल हो गए जन्म लिए. लेकिन हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम शास्त्र का विचार करते हैं तब हमारे जितने भी अवयव है वहां भी 40 साल के हो गए ऐसा नहीं रहता. कई बार हम देखते हैं कि उनकी जो एजिंग की जो गति है, चरण की जो गति है अवयवों की, वो कई बार अलग अलग होती है. हर व्यक्ति में वो अलग होती है. अब इसके बारे में हम आधार ले सकते हैं, जो मैं लेता हूँ वो शारंगधर संहिता में हर 10 साल में हम क्या छोड़ते हैं, क्या चीज हमें छोड़ती है, इसका एक बहुत सुंदर श्लोक है. और उन्होंने बोला है कि बाल्य मृदिश छविर मेधा वक्दुष्टि शुक्र विक्रमो वगैरह, वो सब पूरा श्लोक आपको याद होगा. तो पहले 10 साल में हमको बाल्य छोड़ के जाता है. आगे आने वाले 10 साल में, यानी उसके बाद वाले 10 साल में ग्रोथ भी हमको छोड़ के जाती है. उसके बाद वाले 10 साल में छवि छोड़ के जाती है. 40वें साल में हमको मेधा छोड़ के जाती है. ये कॉग्निटिव फंक्शन है, मेधा ये कॉग्निटिव फंक्शन है. तो इसको हमको समझना चाहिए. ये मेधा ये चीज होती है जिससे हमको नई चीजें सीखने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है. तो 50वें साल में त्वचा जो हमारा ये है वो कम होते जाता है. दृष्टि है 60वें साल में, तो दृष्टि, शुक्र का मतलब होता है हमारी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी.
वो 60वें साल में या 70वें साल में कम हुई। और 80वें साल में उसने विक्रम ये शब्द का इस्तेमाल किया है। विक्रम का अर्थ मेरी दृष्टि से ये मैंने ये किया कि रिस्क लेने की जो क्षमता रहती है आदमी की, ये उम्र के साथ बढ़ती है, और उसका उन्होंने एक मापदंड 80 साल का रखा है। अब ये होता ही है कि कुछ लोगों का उससे पहले ही वो कि नहीं इसके बाद नहीं ले सकूंगा, तो के बाद में बुद्धि का ह्रास। अब देखो यानी 40वें साल में प्रज्ञा गई और 80वें साल में बुद्धि गई, तो दोनों में फर्क है, ये हमको समझना चाहिए। और जब 100 साल के होते हैं तब कर्मेंद्रिय हानि ये शब्द का इस्तेमाल ग्रंथकार ने। अब ये एक चीज हो गई, ये जिसको आयुर्वेद की ये विशेषता है कि वो ग्रॉस जनरलाइजेशन करते हैं हमेशा। तो ये ग्रॉस जनरलाइजेशन के बारे में कहते हैं, लेकिन हम आधुनिक दृष्टि से भी ये देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सभी को कैटरैक्ट जो है, जो एजिंग प्रोसेस है, सभी को कैटरैक्ट एक ही उम्र में नहीं आता। यहाँ पर तो 60 साल बताए, लेकिन वो 60 साल में भी 60वें साल तक ऐसा हम लोगों ने समझना चाहिए उसका अर्थ। तो कैटरैक्ट भी एक समय पर नहीं होता, किसी को 2-4 साल इधर उधर होते रहता है, कई लोगों को उससे और देरी होती है। हार्ट अटैक ये आज के तारीख में ये एजिंग का ही एक प्रकार कहा गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है आज की भाषा में। तो उसका भी जो समय है वो शरीर का नहीं होता। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि का जो ये मूत्राशय हमारे इसमें कहा गया है, उसका भी समय एक नहीं होता। तो ये हमारे हर व्यक्ति में हर अवयव के एजिंग की जो गति रहती है, जिसको मैं स्पीड ऑफ एजिंग कहता हूँ, ये अलग अलग होती है। इसको हम लोग यदि ठीक से समझते हैं तो हम ये जो वेलनेस को है वो ठीक से एड्रेस कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यानी हर व्यक्ति में हम लोग सभी जिसको हम बोलते हैं जनरल रसायन नहीं वापरेंगे, जिसकी हम यदि इसमें यशस्वी हो गए कि हम स्पीड ऑफ एजिंग को यदि कैलकुलेट कर सके, हर व्यक्ति में कोई व्यवस्था हम लोग ऐसे ढूंढ के निकाले कि पवन जी के हर अवयवों की स्पीड एजिंग की क्या है, तो हम पवन जी स्पेसिफिक रसायनों का प्रयोग ये शायद उनकी उम्र के 20वें साल से ही कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में उसकी जो गति है, क्या कहते हैं उसको, एजिंग की जो गति है, उसको बुद्धि रुक जाती है और फिर बाद में जो है वो उतार ही उतार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो वेलनेस से विचार करते हैं, तब ये स्पीड ऑफ एजिंग का भी हम लोग विचार करते हैं। और ये श्लोक में तो मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिकल और कॉग्निटिव दो ही प्रकार का उल्लेख है, मन और आत्मा का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसको भी यदि जोड़ा जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो है इसकी तरफ देखें, रसायन किसको कब और क्यों, ऐसे 3 प्रश्नों का उत्तर यदि हम ढूंढ सके तो मुझे लगता है कि ये वेलनेस वाले प्रॉब्लम को हम सही ढंग से एड्रेस कर सकें। इसके विषय में बहुत सारी चीजें बोलने लायक है। हमारे पास में अनुज जी है जो खुद कायाकल्प करवाते हैं लोगों को, और वो जिस प्रकार से दिखते हैं और हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कायाकल्प जो है उन्होंने भी करवा लिया है। तो इस चीज को हम इस दृष्टिकोण से भी देखें, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही आज ये वेलनेस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पर आप सब सोचिए और इसकी विधा को हम ढूंढ के निकालेंगे, उसकी व्यवस्था भी, मैंने भी कुछ काम कल्पना पर। तो इसका यदि हम मॉड्यूल को डेवलप कर सकते हैं जिसके हर व्यक्ति का अपने को पता चले ये स्पीड ऑफ एजिंग क्या है, तो ये वेलनेस को हम एक ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं, एक एविडेंस बेस्ड वेलनेस ला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे यहाँ पर मेरे 2 शब्द रखने की आयोजकों ने जो समय दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पवन जी के सुप्रचालन में क्या देखना है, बहुत सुंदर भाषा को इस्तेमाल करते हैं। नागपुर से राजस्थान जाकर इतनी अच्छी भाषा होगी, नागपुर की भाषा तो इतनी अच्छी है नहीं। ये जो सीखा है उत्तर भारत में जाकर ही सीखा है, ये मैं जरूर जानता हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तनुजा जी ने इनको पवन पुत्र बोला है, मैं इनके पुत्र को पवन पुत्र बोलता हूँ। ये तो पवन है। सर आपके तो आशीर्वाद एक के बार लिए। और सर इनका पुत्र सही में पवन पुत्र है,
क्योंकि वो हाँ, बहुत तो ज्यादा फेमस है, इनसे भी ज्यादा फेमस है वो। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली रिवाइज्ड एडिशन है। जी आप लीजेंड्स का आशीर्वाद और प्रेम मुझे प्राप्त है, इसका मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने और आप को। वो मतलब वेलनेस जिसको हम वेलनेस का जो उत्सव है ना, वो उत्सव का वो असली हकदार और लीडर है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, आपके बहुत बहुत काइंड शब्दों के लिए। जयंत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मराठीत मला तुम्ही शाल जोडीतले देतात का असं वाटत होतं थोडा वेळ, पण ठीक है. आपका वो भी हम आशीर्वाद मान लेंगे. संजीव सर के साथ में तो सर मृदु भाषा, संयमित्व तो बहुत नहीं, कुछ नहीं। सीखने मिलता है, मॉडलिंग है. जी जी संजीव सर जैसा गरिमा में व्यक्तित्व है हमारे साथ, लीडरशिप. नहीं, मैं भाषा तो हिंदी जो है वो उधर की ही सीखनी चाहिए, नागपुर की हिंदी ठीक नहीं है। है ही नहीं सर उधर. मुझे जब शुरू में आया था, मैंने कहता था कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लोग कहते थे हिंदी बोलो, मैं कहता मैं हिंदी ही बोल रहा था. ऐसी भी हिंदी है. मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत सहृदयता से जो हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए प्रोफेसर अनूप ठाकर जी, वाइस चांसलर, एक नेशनल एमिनेंस के इंस्टीट्यूट ITRA के, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के वाइस चांसलर. बहुत बड़ा पद है, बहुत गरिमा में व्यक्ति. और जैसे कि जयंत सर ने भी कहा कि ये खुद अपने आप में एक कायाकल्प समेटे हुए हैं, ऐसे प्रोफेसर अनूप ठाकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीर्वाद वचनों से हमें नवाजे. प्रोफेसर अनूप ठाकर. थैंक यू सर्वमित्र पवन जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया. आदरणीय जयंत देव पुजारी जी, चेयरमैन NCIM और प्रेसिडेंट CCIM, कि जिन्होंने अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए आयाम देना शुरू कर दिए हैं और शायद उसके फल हमें बहुत शॉर्ट टाइम में दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है. और AIIA की डैशिंग डायरेक्टर तनुजा नेसरी मैडम, ऑफ कोर्स पवन जी ने कह ही दिया कि अगर अगली बार हुआ आयुर्वेद वाला जो फैशन वाला मिस आयुर्वेद, तो अगली वो ही है. और हमारे डायनेमिक डायरेक्टर, NIA के डायनेमिक डायरेक्टर एंड टू बी वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, और हमारे साथ उपस्थित प्रजापति जी और प्रीति छाबरा जी, अतुल वार्ष्णेय जी भी मुझे कहीं दिख रहे हैं, और स्वाति बमनोते जी भी दिखी. सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ हैं आज, और ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये 2 दिन बड़ा इस कोरोना काल में जो जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा आदरणीय कि भले दूर से पर ये कुंभ का आयोजन किया, और वो भी विशिष्ट कुंभ का, क्योंकि आयुर्वेद के कुंभ ज्यादातर बड़े सीरियस और गंभीर किस्म के होते हैं, पर ये जो कुंभ पवन जी ने परिचय दिया शुरू में ही, ये इसका मकसद ही अलग था और रास्ता भी अलग था, और विथ हैप्पीनेस आयुर्वेद का मैसेज दिया. बहुत ही यूनिक आइडिया है, और मुझे लगता है ये आइडिया ये सक्सेस होगा भविष्य में, क्योंकि अगर हमें आयुर्वेद को दुनिया तक पहुंचाना है और स्वास्थ्य के मंत्र को, आयुर्वेद के स्वास्थ्य के मंत्र को और वेलनेस को पहुंचाना है दुनिया तक, तो आई थिंक यूथ इज द मीडिया, और वही माध्यम बन सकता है. और युवा शक्ति को अगर जोड़ना है तो यही सभी उचित रास्ते हैं जो कि आज 2 दिनों में अपनाए गए. बहुत ही अच्छा विचार है, और युवा शक्ति जब जिस किसी चीज के साथ जुड़ती है तो अपने आप वो एक मूवमेंट बन जाती है. और आई होप कि आज का ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था, ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत जो वेलनेस का प्रोग्राम थ्रू आयुर्वेद था, थ्रू आयुष, वो इसका ये स्टेप मींस जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन स्टोन बनेगा कि युवा शक्ति को हम कैसे आयुर्वेद के साथ और आयुर्वेद के स्वास्थ्य की संकल्पना के साथ कैसे जोड़ सकते हैं. और ये बहुत अच्छी बात है. और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेद बट बाकी सब विधाओं के विद्यार्थी भी इसमें जुड़े.
मैं बीच बीच में, माफ करना, थोड़ा अंग्रेजी की ओर घुस जाता हूँ, पर मैं शब्द ढूंढ लेता हूँ कहीं से। तो जो बाकी की विद्या शाखाओं के विद्यार्थी भी जुड़े उसमें, तो बहुत सही में हमारे लिए अच्छी बात है, और इसमें मैं उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। एक्चुअली वेलनेस, आयुर्वेद का तो मेजर पार्ट ही वेलनेस है। बहुत सारी चीज, बहुत सारे आदरणीय वक्ताओं ने मेरे पहले कही कि, और उसमें सब समाहित हो ही चुका है कि वेलनेस, आयुर्वेद तो पहले प्रायोरिटी पे वेलनेस लगता है। वो ये कहता है कि आपको अगर स्वास्थ्य हानि हुई और अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, आपको चिकित्सा की जरूरत होती है, तो ये आपने प्रज्ञापराध किया है कहीं ना कहीं, और ये कनिष्ठता की ओर आप जा रहे हैं, और तभी आपको स्वास्थ्य चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो प्रायोरिटी तो उन्होंने वेलनेस को ही दी है, और नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल, स्पिरिचुअल एज वेल एज सोशल वेलनेस आल्सो हैज बीन कंसीडर्ड वेरी वेल बाय आयुर्वेदा, और उसमें बड़ा अच्छे से प्रिस्क्राइब किया गया है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन की जो बात है और ये सब बात है, तो हम जानते ही हैं कि आयुर्वेद उसी को प्राधान्य देता है, और कोई भी कार्य, नॉट ओनली हेल्थ, पर कोई भी कार्य हो, उसमें अगर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन न हो, तो तब तक उसका आउटकम जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। जो जिस हिसाब से हम बेस्ट आउटपुट चाहते हैं, तो वो अगर चाहिए तो आप, शरीर तो स्वस्थ हो ही, पर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन के सिवा अगर वो कार्य हुआ, तो यू कांट एक्सपेक्ट द बेस्ट। और इसलिए अगर हमको भारत को श्रेष्ठ बनाना है, और श्रेष्ठता भारत के थ्रू विश्व में लाना है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें वेलनेस का, आयुर्वेद का अपनाना ही पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि जो भी आयुर्वेद में लिखा है वो इट्स अ साइंटिफिक, इट्स अ साइंस। और मुझे खुशी है कि CSIR और निस्केर के साथ मिलके प्रोग्राम हो रहा है, विज्ञान भारती के साथ, और साइंस को, आयुर्वेद को भी साइंस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आजकल उसी प्रयासों में लगे हैं कि आयुष को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए और इंटीग्रेशन किया जाए, जो कि फ्यूचर है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूजन का ही जमाना है, चाहे वो फूड हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे क्लोथ्स हो, व्हाटएवर। फ्यूजन के बिना काम चलने वाला नहीं, और फ्यूजन तो इसमें भी करना पड़ेगा। हेल्थ साइंस कैसे अछूता रह सकता है, तो फ्यूजन तो करना ही पड़ेगा। और हमारे पास आयुर्वेद और बाकी आयुष की विधाओं को फ्यूजन करने जैसी अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोगों को तक ले जाएं। शायद हम शायद कहीं हमारी ओर से इतना जोर से प्रयास नहीं हुआ कि लोगों के तक हम पहुंचाए। शायद हम ये कर सकते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचे, और उससे स्वास्थ्यवर्धन हो, और हमारा हेल्थ बजट डाउन आए, और हम दुनिया को दिखा सके कि वी कैन डू दिस थिंग थ्रू आयुष। तो शायद हमें बहुत कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं होगी। हमारी करनी और हमारे व्यवहार ही उदाहरण रूप होंगे। लोग आएंगे यहाँ आपको स्टडी करने के लिए, आपके मॉडल को समझने के लिए, और अपने आप वो होगा। तो मुझे तो लगता है कि घर से ही क्यों शुरुआत ना करें कि हमारे लोगों को समझाएं और स्वास्थ्य क्या है। एक्चुअली वेलनेस शब्द जहां जुड़ता है ना, लोगों के मन में ये बैठ गया है कि वेलनेस मीन्स समथिंग, कुछ बड़ा वो स्पा में जाना, या बड़ी जगहों पे जाना, बड़ी सिरोधारा लेना, मसाज करना, और वो क्या जाकूजी और शब्द बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, वो सब करना, वही वेलनेस है। या तो ऐसे फूड लेना कि भाई जो सामान्य लोगों को उपलब्ध ना हो, इस प्रकार के डाइट, आहार और विशिष्ट खाने लेना, वो वेलनेस के लिए जरूरी है। योग भी करते हैं, तो योग हालांकि अभी सामान्य तक पहुंचा है, पर अदरवाइज वेलनेस जहां शब्द जुड़ता है वहां वो अपने आप प्राइस बढ़ जाती है, और सामान्य वर्ग से वो दूर हो जाता है। उसको उस नोशन को हमें हटाना है, उसको हमें कॉमन पब्लिक तक ले जाना है, और आयुर्वेद के माध्यम से और आयुष के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सिंपली भाई, जो आयुर्वेद ने कहे, मैं तो पंचकर्म का हूं और पंचकर्म की बात करूंगा कि कर्ण पूरण, और ये जो प्रतिमर्शनस्य, नित्य अभ्यंग, नित्य एटलीस्ट शिरो अभ्यंग, ये सब चीजें
कौन सा उसमें ज्यादा खर्च होता है और कौन सी आपको ज्ञान चाहिए बड़ा सा। अगर हम लोगों को ये समझा पाए कि इट इज साइंटिफिक, ये विज्ञानी है, लोगों को हम ये समझा पाए कि भाई जो अंग्रेजी में लिखा है वो ही विज्ञान नहीं है, संस्कृत में लिखा है वो भी विज्ञान ही है, अगर हम ये इतना समझा पाए और कन्विंस कर पाए तो शायद वो संक्रांति होगी वेलनेस के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सिम्बायोटिक हेल्थ एक हमारे वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है चक का। तो सिम्बायोटिक हेल्थ, उसमें उन्होंने संकल्पना की है कि स्वॉर्ड एंड शील्ड, आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है इट कैन वर्क लाइक अ स्वॉर्ड, पर शील्ड के बिना कोई भी वॉर आप जीत नहीं सकते, और इसलिए ये वेलनेस जरूरी है, ये स्वास्थ्य जरूरी है, इट्स अ शील्ड, और वो दोनों मिल जाए तो इट कैन डू मिरेकल्स। तो ये जो है आत्मनिर्भरता हमने स्वास्थ्य के बारे में कही है, तो वो इसी के थ्रू आ सकती है, वेलनेस के थ्रू। बहुत सारी बातें कहने को है। मैं आज सुबह कहीं पढ़ रहा था, महर्षि अरविंद ने कहा है कि सुपर ह्यूमन होना ये मनुष्य की अंतिम स्टेज होगी। ये अभी जो चल रहा है, हम संक्रांति में चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज जो है मनुष्य का वो सुपर ह्यूमन होगा। और आजकल एक बड़े प्रख्यात लेखक हैं युवल नोआ हरारी, जो इजराइल के बड़े नोन हिस्टोरियन है, और उन्होंने लिखी है होमो सेपियंस और होमो ड्यूस। होमो ड्यूस सेज अबाउट दिस के मुझे तब उनका अरविंद जी का कोटेशन पढ़ा, महर्षि अरविंदो का, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तब उन्होंने संकल्पना की थी जो इतना इतिहास खंगाल के आज युवल नोआ हरारी कह रहे हैं, और इट इज अ टॉप सेलिंग बुक। तो सुपर ह्यूमन की जो संकल्पना है वो होने जा रही है, और वो सुपर ह्यूमन तभी हो सकता है कि जब आप मन से और शरीर से दोनों से स्वस्थ हो। तो इसके लिए आयुर्वेद में जो कहा है अगर वो फॉलो किया जाए, भले काम कितना भी हो, सोशली कितना भी कार्य हो, फिजिकली कितना भी कार्य हो, मेंटली आप कितने भी एक्टिव हो, पर अगर हमारे जो स्वास्थ्य के सिद्धांत कहे गए हैं वो अगर फॉलो किए जाए तो मुझे लगता है कि वी कैन मेंटेन वेरी वेल अवर वेलनेस, एंड हमारे राष्ट्र की जो जीडीपी है शायद वो भी इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है करने को हम चाहें तो, पर बात यह है कि ये संकल्पना को, फूड और लाइफस्टाइल को कॉमन पब्लिक तक ले जाए। हम सब यूजुअली होता है कि आयुर्वेद या तो कुछ मॉडर्न मेडिसिन के पीपल या तो कुछ लोगों के बीच ही ये चर्चा रह जाती है, और कोई ऐसी विधा नहीं बन पा रही है, मॉड्यूल नहीं बन पा रहे हैं। शायद कोरोना ने हमें ये पाथ दिखाया है, कोरोना ने पाथ ब्रेक किया है, हम लोग तक पहुंचे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, सोसाइटी तक पहुंचे। वो बड़े पैमाने पे करने की शायद जरूरत है, और हम सबको इस दिशा में लगना होगा। ये शायद ये 2 दिन के सेमिनार ने हमें समझाया, और उसने हमें रास्ता भी दिखाया कि भाई काव्य भी उसका रास्ता हो सकता है, कार्टून्स भी उसके रास्ते हो सकते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी उसके रास्ते हो सकते हैं। I really congratulate the team for innovative ideas and organizing such a wonderful event in 2 days with very short notice. पूरी टीम बधाई के पात्र है इसके लिए, और आप सबों ने हमें जुड़ने का मौका दिया आपके साथ, और हमारे विचार आपके साथ शेयर करने का हमें मौका दिया, उसके लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विज्ञान भारती, CSIR और निस्कैर का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने इतने अद्भुत इवेंट्स किए और उसमें आयुर्वेद को भी स्थान दिया, खास करके वेलनेस के क्षेत्र में। और ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे सर्वमित्र और सर्वप्रिय पवन कुमार जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबों के साथ सहभागी होने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जो नोट्स लिख रहा था, बना रहा था, बहुत सारे नए बिंदु मिले। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का ये तो होता ही है कि गुरुजी लोग हैं। देव पुजारी सर ने भी एक नया कंसेप्ट दिया, मैंने एविडेंस बेस्ड वेलनेस की कुछ आइडियाज दी, मैं आपकी भी बात कुछ नोट कर ली है। संजीव सर ने भी एक अलग ही एंगल से डिफाइन किया हित आयु वाला वेलनेस, सुखायु और हितायु। सुखायु स्वस्थ और हितायु वेलनेस तक जाता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट था वो भी। तनुजा मैडम ने भी नई नई कुछ अनेक बातें की। मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रीति जी को आमंत्रित करूं
उसके पहले मैं अपनी तरफ से अपनी जो टीम है बैकग्राउंड में, जिनको हम कई बार भूल जाते, शायद प्रीति जी ध्यान न दे पाई, डॉक्टर सुमन रे हैं निस्केर से जुड़ी हुई, उन्होंने बेहद दिन रात दौड़ दौड़ के ये समन्वय का काम किया जो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होता है। निस्केर, विज्ञान भारती, आयुष मंत्रालय और हम लोगों के बीच में इन्होंने एक कड़ी का काम किया। सुमन रे मैडम और उनकी टीम, निर्बुंदु दास, जतिन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इतनी सारी बातें आई हैं, देव पुजारी सर, संजीव सर, तनुजन मैडम, अनूप भाई ने जो जो बातें लिखवाई, सहस्त्र बुद्धे सर ने भी कहा, मुझे एक शेर याद आ रहा है, उस पर मैं इस उत्सव को अपने तरफ से समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। अनूप भाई अगर आप इरशाद कह दें तो मैं शेर सुना दूं। रानू सहरी जी का शेर जगजीत सिंह ने गाया है बहुत सुहाने ढंग से कि शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, क्या क्या कुछ है उस दामन में, इस आयुर्वेद के दामन में सारा वेलनेस इकट्ठा हो जाएगा। क्या क्या कुछ है उस दामन में, वो दामन हाथ में आए तो। और आप जैसे लीजेंड्स अगर जुड़ते हैं हमारे साथ, अपने साथ, तो जरूर ये दामन हाथ में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। प्रीति जी, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की रिक्वेस्ट है आपसे। Thank you, Pavan ji, and thank you for organizing such a wonderful event, being the captain of the ship, I would say. And अभी हमने जिन जिन लोगों की बात सुनी, वो that was a crux, पूरा एक निचोड़ था जो कल और आज के पूरे जो conclave था उसका निचोड़ था। And all is well that ends well, हमने इस सेशन को नाम दिया, and which was very appropriate. For the formal vote of thanks, I would like to thank all of you on behalf of the organizing committee of Wellness Conclave 2020. I take this grand opportunity to offer gratitude to the dignitaries who squeezed out their precious time out of their busy schedules to join us here today and bless us. We were overwhelmed by the lofty presence of Sri Jayant Satrabuddhiji, National Secretary Vibha, who in all humility has been a guiding force for all of us. His novel presence is our greatest privilege. The elite presence of luminaries today, Professor Anup Thakurji, Vice Chancellor, Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, Vaidya Jayant Dev Pujari Ji, Chair, Board of Governors, National Commission of ISM, Professor Sanjeev Sharma Ji, Director, National Institute of Ayurveda, Professor Tanuja Nesri Ma'am, Director, All India Institute of Ayurveda. Their dynamic presence of all these luminaries is a great matter of pride for all of us. My words fall short to express thanks for the tireless efforts put in by the coordinators of various sessions, mobilizing resources from all spheres to make their respective sessions a big success. Special thanks to Vaidya Kalpana Shah ji, Vaidya Shivakumar Harti ji, Vaidya Anurag Pandey ji, Vaidya Ganesh Kohle ji, Vaidya Reena Arora ji, Vaidya Gaurav Phul ji, Vaidya Atul Varshne ji, Vaidya Arpan Bhatt ji, Dr. Ashwati Kutti ji, and all the jury, all the judges of the competitions. The theme of these competitions was selected meticulously with a focus to enhance mental health, which is very, very important in this post-COVID era. We know we have to explore the lighter spectrum of wellness, and that was the main aim behind selecting these themes. We tried our level best to ignite the young minds to put forth their revolutionary ideas and pull in their brilliance to take Ayurveda to newer horizons. We acknowledge efforts of all the participants who added value to this event. Our deep regards and heartiest thanks to Dr. Ranjana Agarwal ji, Director CSIR NISTADS, and Dr. Suman Ray ji for unstinted support, guidance, and being the ambassador of wellness, as they have open-heartedly embraced the science of Ayurveda. Before we wind up, I should not forget to convey my special thanks to the technical teams who have put their heart and soul to make this virtual program a flavorful treat for all of us to savor. A big salute to Pavan Kumar ji, the captain of the ship, who ensured a smooth sailing of this conclave throughout. Humble acknowledgements to all the unnamed heroes who worked behind the curtains tirelessly, Jatin ji and Nirbindu ji, to name a few. Last but not the least,
Bundles of thanks to the Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Ayush, CSIR, and Government of India. May Wellness Conclave 2020 be recalled with much joy and nostalgia. Wish you all a very healthy and blissful New Year 2021. Jai Dhanvantri, Jai Ayurved. Namaskar. Thank you very much. Thanks, Preeti ji, for summing up so nicely. Thanks a lot. My pleasure. Thank My you. pleasure. Thank you. So, if we may all leave, thank you very much for all the time you have spent. Thanks a lot. Much obliged, sir. Thank you. Thank you. Thank you.